talk about this. So we are having the sign of equality. Okay. So how can we solve this? I told you we can solve it by with the help of two things. पहली चीज very easy by taking square roots on both sides. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से क्या पता चलेगा मुझे x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी इधर x इक्वल्स टू +5 और x इक्वल्स टू -5 लेकिन अगर now I am talking explaining the second method. What is the second method? Because 25 is at the right hand side of the equation, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बात तो नहीं होगी? Okay, x square minus 25 equals to 0. Once again, अब ये हो गई एक साइड. इस साइड के ऊपर can we identify the two square terms? Yes, we can. X square is the square term of x and 25 is the square term of 5 equals to 0. Okay, now we are then solving it. क्या होता है भाई दो स्क्वायर टर्म्स के बीच में जब माइनस आ जाता है वी हैव टू राइट द स्क्वायर रूट्स वंस विद पॉजिटिव साइन बिटवीन देम एंड वंस विद नेगेटिव साइन बिटवीन देम. ये भी हो गया. अब देखो बेटा there is a sign of multiplication between these two brackets. So how can we solve it? We can say that we have to say that because it is x plus 5 x minus 5 equals to 0. So because there is a sign of equality, so we have to write this either x plus 5 would be equals to 0 या फिर x minus 5 will be equals to 0. जब हमने x plus 5 को सॉल्व किया तो x का एक पॉसिबल आंसर आया x equals to -5 और जब हमने x -5 equals to 0 को सॉल्व किया तो आंसर आएगा x equals to +5. देखो वही दो आंसर्स आए but this is another way. Here we have applied the identity. Next, 3x square plus 8x plus 4 equals to 0. पहली बात एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है, so this is an equation. ठीक है. Is anything common here? Nothing is common. Can we apply the identity? No, we cannot apply the identity because the first term 3x square is not a square term. तो अब क्या किया जाए? We are having the third method by breaking the middle term. Middle term कैसे break किया जाएगा? 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 12. Now writing down the possible pairs of factors of 12. 1 into 12 भी equals to 12 होता है, 2 into 6 भी 12 होता है, 3 into 4 भी 12 होता है. हमें इन तीन में से कोई एक ऐसा पेयर ऑफ फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके 8 मिल जाए. मिल गया 2 and 6. So now we are breaking the middle term 2 and 6 because the variable used here is x, तो हमने भी x लिख दिया. मुझे पॉजिटिव 8 चाहिए तो 2 और 6 दोनों को प्लस करेंगे तब ही जाके पॉजिटिव 8 मिलेगा. So now what we have done, we have broken the middle term. We broke the middle term. So how to write this? 3x square plus 2x plus 6x plus 4 equals to 0. Now, how many terms are there? There are 4 terms. We have to take the pairs. This is already we already done in the first term. Okay, pairing क्योंकि हमें ये चेक करना है कि क्या चीज कॉमन है. In the first two, x is common. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया? 3x plus 2 बच गया. In the second two, we are having 2 common. तो यहाँ पे भी 3x plus 2 बच गया. Now I am removing it.
ओके, सो आगे क्या किया जाएगा जनाब? बिकॉज वी कैन सी the two of the brackets are same, so how will write? जो सेम है उसको एक दफा लिख देंगे 3x plus 2, और जो पढ़ा है उन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके लिख देंगे लाइक दिस। तो इससे क्या हो गया? नाउ वंस अगेन वी आर हैविंग two brackets that are equals to 0, two brackets that are equals to 0, so क्या किया जाएगा? इधर और, वंस अगेन इधर और किया जाएगा। इधर और से क्या किया जाएगा? या तो पहला वाला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 होगा या तो दूसरा वाला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा सर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में किसी भी चीज का आंसर 0 एक ही कंडीशन में आता है, जब कोई भी एक 0 होगा, जब कोई एक लाजमी 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब आंसर 0 नहीं आना चाहिए। सो वंस अगेन वी विल राइट ईदर 3x plus 2 equals to 0 और x plus 2 equals to 0। जब हमने इसको सॉल्व किया आंसर आया x equals to -2/3, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया x equals to -2। These are the two possible answers। देखो जब एक्सप्रेशन होती है तो आंसर्स नहीं आते, साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है तो हमें दो ब्रैकेट्स तक आंसर लीव कर देना होता है। लेकिन जब साइन ऑफ इक्वालिटी आती है तब हमें ईदर और करना पड़ता है, जैसे हमने x स्क्वायर -25 में किया, जैसे हमने यहाँ पे किया, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस थी। सो दीज आर द टू आंसर्स। नाउ another question, what is this? Once again this is an equation। क्या ये quadratic है? जी हाँ, the highest power of the variable x is 2, so yes this is a quadratic equation। Can we solve it right now? No sir, we cannot solve it right now because this is not organized, and इसको solve करना है तो equal to 0 भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या किया जाएगा, 3x स्क्वायर जो नेगेटिव का है वो वहां चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का 7x जो यहाँ पे नेगेटिव है वो वहां चला जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो क्या हो गया, इट विल बिकम, इस साइड पे तो बच गया 0, माइनस का 3x स्क्वायर वहां पे गया पॉजिटिव 3x स्क्वायर, माइनस का 7x वहां पे गया पॉजिटिव 7x, पॉजिटिव 4 वहां पे गया नेगेटिव 4, और पॉजिटिव 6 ऑलरेडी यहाँ पे था है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 6 ऑलरेडी था ही। नाउ एक्स स्क्वायर की सिर्फ एक टर्म है, पॉजिटिव एक्स की एक्स पावर 1 की सिर्फ एक टर्म है। दीज आर द टू टर्म्स दैट कैन बी सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखूं या फिर यहाँ पे लिखूं, एक ही बात है। सो हमने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। ओके, क्या हम यहाँ पे अब देखते हैं, once again 3 things, anything, is there anything common? Nothing is common here. Can we use identity here? No sir, we cannot use identity over here. So what we'll have to do, because there are 3 terms, तो मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। ओके, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। किन दोनों को, पहला और आखिरी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है। सो 3 2 टाइम्स is 6। चलो 6 के फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स, 1 6 सा 6 होता है और 2 3 सा 6 होता है। ठीक है, मुझे पॉजिटिव 7 चाहिए, इससे पॉजिटिव 7 नहीं मिल सकता, तो पॉजिटिव 7 किससे मिलेगा, पॉजिटिव 1 एंड पॉजिटिव 6 से, 1 एंड 6, पॉजिटिव 7 चाहिए, दोनों को पॉजिटिव। वेरिएबल जो x यूज हुआ है वो है x, तो हमने दोनों पे x लगा दिया। ओके, नाउ जो पीछे हमने अभी सॉल्व किया वो सब ये रहा। हमने फिर मिडिल टर्म को ब्रेक किया था, पॉजिटिव 1x एंड पॉजिटिव 6x। नाउ वी आर सॉल्विंग इट हियर। क्या करना है सर, मिडिल टर्म ब्रेक कर दिए तो इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि 2 2 के पेयर्स बन जाए। ओके, सो इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 1x, या फिर खाली x, वन एंड सेम थिंग, प्लस 6x एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पहले के 2 में क्या कॉमन है,
सर ओनली x इज कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया 3x + 1, बिकॉज x कॉमन आ चुका है तो अंदर क्या बच जाएगा 1 बचेगा। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 इज कॉमन, सो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x + 1 = 0। नाउ these two brackets are identical, so 3x + 1 जो सेम है उसको एक दफा लिखा और फिर इसको यहाँ पे लिख दिया = 0। Once again, what have we got? The product of two brackets which is equals to 0. So we have to do either or. So either 3x + 1 would be equals to 0 or x + 2 will be equals to 0. हमने इन जब दोनों को सॉल्व किया तो हमें क्या पता चल गया भाई कि x का एक आंसर है -1/3 और x का दूसरा आंसर है -2। दोनों आंसर्स नेगेटिव में हैं। Is it fine? Anyone is having any questions? So please अभी पूछिए मुझसे। Okay, no one is having any question. That's good. That's the end of फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यहाँ पे अभी हमने खत्म कर दी। चलो जी, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट हियर? देखो बेटा 31 स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, वेरी मच कंसेप्चुअल, सो प्लीज पे योर कंप्लीट अटेंशन। अपने आप से चीटिंग नहीं कीजिएगा, अपने पेरेंट्स से चीट नहीं कीजिएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज लुक हियर। व्हाट इज दिस? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। द सेकंड थिंग, देखो पहली चीज क्या थी फैक्टराइजेशन, वो भी मैंने आपको बता दी। सेकंड थिंग इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये एक्चुअली होता क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर? अब चलो मैं खुद नाम बताता हूँ। एनीवन ऑफ यू? चलो कार्तिक, टर्न ऑन योर माइक प्लीज। कार्तिक, कार्तिक जी ओके। कार्तिक मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। अब मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में समझाना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बेटा, ये बताइए कि एक चीज है, एक नंबर लिख रहा हूं मैं, दैट नंबर इज 6, दैट नंबर इज 6। मुझे ये बताओ क्या ये 6 एक कंप्लीट स्क्वायर है? नहीं सर। ओके, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। कार्तिक, मैं इसके अंदर क्या चीज प्लस कर सकता हूं ताकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए? वेरी गुड, वापस बोलो। 3 हाँ, 3 ऐड करने से क्या बन गया? ये 9 9 बन गया। अब 9 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। किस चीज का? 3 का। ये बात समझ आई? yeah. आपको तो आ गई, बाकी सबसे पूछो। ओके, इंशा टर्न ऑन योर माइक। कार्तिक थैंक यू बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। देखो प्लीज जल्दी। हेलो, नॉक नॉक। ओके, शयान। प्लीज बाबा जल्दी प्लीज। चलो बस, सेशन खत्म हुआ। बस मुझे सिर्फ ये बताना था कि अब सुनो बेटा, नो माइक्स ऑन। अब मेरी बात सुनते हो, ठीक है? माइक ऑन अब कब कीजिएगा? जब आपको बीच में कुछ समझ ना आए। ओके, नाउ आई एम कंप्लीटिंग इट।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब किसी भी चीज में किसी को प्लस करने से वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। जैसे कि अभी मैंने और कार्तिक ने आप लोगों को समझाया कि 6 के अंदर 3 प्लस करने से ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 12 एक नंबर है, 12 में क्या प्लस करूँ कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए? सर वैसे तो बहुत कुछ प्लस कर सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट कंप्लीट स्क्वायर क्या बन सकता है? जब हम इसको 4 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, एक है 19। 19 में मैं नियरेस्ट क्या प्लस कर सकता हूँ कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए? सर 19 में आप 6 प्लस कर सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। किसका बनेगा? 25 का। सिमिलरली एक है 34। 34 में क्या नियरेस्ट प्लस करूँ मैं कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए? सर आपको 2 प्लस करना पड़ेगा ताकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। 36 जो कि 6 का स्क्वायर है। ये बात यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। अब चूंकि ये हैं नंबर्स तो इनमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं या अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स यूज होते हैं। उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स यूज होते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक फॉर्मूला समझाता हूं मैं। वी ऑल नो दैट a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, ऐसा? जी सर बिल्कुल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। मुझे क्वेश्चन में बोला गया फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक एक्सप्रेशन है। आपसे पूछा जाता है कि बेटा बताइए इसमें क्या चीज प्लस की जाए कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब ये नंबर तो नहीं है कि मैं बताऊं कि सर 2 प्लस कर दें, सर 4 प्लस कर दें, सर 6 प्लस कर दें या कुछ भी, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स। तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि ये कंप्लीट एक फॉर्मूला है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसमें ए स्क्वायर है प्लस 2ab भी मौजूद है। क्या चीज प्लस करने पे ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा? यानी यहाँ पे मैं क्या चीज प्लस करूं कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन सकता हो? सर हमें b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ओके जी, b का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ये कैसे आप बोल सकते हो कि बाबा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया? बिकॉज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको मुझे बंद करना है, कंप्राइज करना है, इसको बंद करना है। तो क्या किया जाता है? लोग पहले वाले का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? ए। मिडिल वाले की साइन और लास्ट वाले का भी स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये बन चुका है एक कंप्लीट स्क्वायर। दिस वॉज ओनली द कॉन्सेप्ट जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि एक्चुअली ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। नाउ moving towards the completing the square method, steps for solving the quadratic equations or expressions by completing the square method. चलो जी, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी ये मैं पढ़ रहा हूं, आगे एग्जाम्पल करेंगे तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है? अगर हमारे पास टाइम नहीं होगा तो फिर ये मैं वापस से कल समझाऊंगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट प्लीज डू पार्टिसिपेट। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज पूछिएगा। ओके, सो सेकंड स्टेप, मूव द टर्म। कौन सी वाली टर्म? एक टर्म है जिसको हमें हटाना है, मूव करना है, कोने पे करना है, या फिर अगर इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड के ऊपर मूव करना है। द टर्म विदाउट वेरिएबल, जो भी टर्म होगी विदाउट वेरिएबल उसको, अगर इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड के ऊपर मूव करना है, अगर एक्सप्रेशन है तो फिर
राइट मोस्ट कॉर्नर पे हमें इसको शिफ्ट कर देना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? कंप्लीट द स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन है तो। अगर इक्वेशन नहीं है तो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर लेफ्ट कॉर्नर पे हमें उसको कंप्लीट करना है। एंड बैलेंस दिस बाय एडिंग, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, हाँ, बैलेंसिंग। बैलेंस दिस बाय एडिंग द सेम वैल्यू और सब्ट्रैक्टिंग द सेम वैल्यू टू द राइट। ये क्या लिखा हुआ है राइट से? नो मोर स्टेप्स फॉर अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर ये एक एक्सप्रेशन है तो स्टेप नंबर 3 तक हमारा काम तमाम। स्टेप नंबर 3 तक हमने सब काम कर दिया। लेकिन अगर इक्वेशन है तो हमें 2 और स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो नाउ वी हैव समथिंग दैट लुक्स लाइक x प्लस पी होल स्क्वायर, क्योंकि हम होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर चुके होंगे, तो x प्लस पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू q। p एंड q यहाँ पे अभी एज एन एग्जाम्पल लिखे गए, ठीक है। p q यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जैसे ही हमने ये लिख लिया, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए ना x के 2 आंसर्स, तो हमने स्टेप नंबर 4 करना है, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, और फिर subtract the number that remains on the left hand side of the equation to find the value of x। अभी तो स्टेप सिर्फ पढ़े हैं, हो सकता है आप लोगों को ना समझ आया हो। सो वी आर मूविंग। अब देखो स्टेप नंबर 3 समझा रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 3 में लिखा हुआ है कंप्लीट द स्क्वायर। सर कैसे कंप्लीट किया जाएगा स्क्वायर? हमें थोड़ी ना पता है कौन सा अल्फाबेट आएगा। पीछे जो आपने बताया वो तो एक फॉर्मूला था, सबको याद था, इसलिए हमने बता दिया कि सर बी स्क्वायर आएगा तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बाकी थोड़ी कोई हमें जो ना हर दफा जो ना फॉर्मूला दिया हुआ है। बिल्कुल सही बात। सो यहां से पढ़ रहा हूं मैं। When its number, completing the square by adding another number is not difficult, जैसा कि अभी हमने बताया था। But when the variables are involved and we are asked to complete the square, we have to use the formula। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला। अच्छा एक और बात, जो भी मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताई, हर किसी में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपसे क्या पूछा? बेटा बताइए क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी ताकि नियरेस्ट स्क्वायर बन जाए। क्या चीज ऐड करनी? कभी भी मैंने सब्ट्रैक्शन का वर्ड यूज नहीं किया। सो हमेशा याद रखिएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अच्छा सर क्या ऐड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली पहली और दूसरी टर्म्स गिवन होंगी, जैसे कि हमारे पास पीछे लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें गिवन था। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म। तो मुझे क्या चीज ऐड करनी पड़ती है? हमेशा हमें ऐड करना पड़ता है थर्ड टर्म। हमेशा हमें क्या चीज ऐड करनी पड़ती है? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड होगी? हियर वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑफ थर्ड टर्म। चलो जी, अब थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। हमारे पास यहां पे जो सब्जेक्ट वेरिएबल है दैट इज ए, तो ए को हटा के बाकी जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? द कोफिशिएंट। लेट्स ट्राई दिस। अगर मैंने इस फॉर्मूला के अंदर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली चीज अप्लाई करने की कोशिश की तो देखते हैं क्या आंसर सही आता है। लेट्स चेक। ओके वो क्या कहता है? वो कहता है कि बाबा कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर कर दोगे तो आपको थर्ड टर्म पता चल जाएगी। चलो जी ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? सर द कोफिशिएंट इज 2b। कोफिशिएंट क्या है? 2b। तो यहाँ पे हमने लिखा 2b अपॉन 2 होल स्क्वायर। 2 से हो गया 2 कैंसिल, अंदर क्या बच गया? b। तो b का स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। यानी थर्ड टर्म का आंसर क्या आ गया? कि b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि सर वी हैव टू ऐड b स्क्वायर टू मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स। यही चीज मैंने आपको पीछे समझाई, यही चीज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी समझा दिया, और यहीं पे हमें ये पता चल गया कि दिस फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 3 में हमेशा वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अब हम एक एग्जांपल करते हैं।
अच्छा, यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। मोस्ट मैं ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट दूंगा। इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। ओके, सो नो वन इज हैविंग एनी क्वेश्चन। वेरी गुड। दो चीजें पॉसिबल है, या तो सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, या फिर कुछ को समझ आ रहा है, कुछ सिर्फ और सिर्फ साइड पे एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं कि हाँ वी आर टेकिंग द क्लास। बहरहाल इफ द सेकंड पॉसिबिलिटी है तो फिर दिस इज नॉट गुड। आई एम मूविंग फर्दर। पेपर 1 का क्वेश्चन है, यानी नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड। क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ x plus b whole square plus q, and then we also have to identify the vertex। देखो याद है vertex जो मैंने yesterday बोल रहा हूँ लास्ट वीक समझाया था। आई होप एवरी वन ऑफ यू रिमेंबर्ड, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास किसी को कोई क्वेश्चन नहीं था, यानी सबको वो चीज पता है। ओके, मूविंग हियर। पहला स्टेप क्या है, मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा। सर ये कैसे पहचाना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा, चलो जी देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन से मुझे कभी भी ये होल स्क्वायर प्लस क्यू वाले फॉर्मेट के अंदर आंसर नहीं मिलता। मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है। इसी वजह से हमें इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही करना पड़ेगा, और पेपर 1 है इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, दैट इज जो कि हमारा थर्ड तरीका है, बाय द जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला। जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला पेपर 1 में हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के लिए वी विल हैव टू यूज द कैलकुलेटर्स, so that's why we are not using, that's why we have to use the completing the square method। चलो सबसे पहला स्टेप कहता है divide all the terms by the coefficient of x square। x square का जो कोफिशिएंट है, ओके यहाँ पे x square के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो सबको 1 से डिवाइड करना, यानी स्टेप नंबर 1 की जरूरत नहीं है। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, it says that move the number term, यानी term without variable to the right hand side of the equation। पहली बात, ये एक इक्वेशन है ही नहीं, this is not an equation। अच्छा, अब ऐसा कौन सा नंबर है जो विदाउट वेरिएबल है, so that is 1। क्या ये पहले से हमारी एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड पे मौजूद है, राइट मोस्ट कॉर्नर पे मौजूद है? जी हाँ मौजूद है, तो सेकंड स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू स्टार्ट विद स्टेप नंबर 3। जो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, कंप्लीट द स्क्वायर। चलो जी, कंप्लीट द स्क्वायर कैसे होगा, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके जी, डायरेक्टली वी हैव टू अप्लाई स्टेप नंबर 3। ओके जी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म? सर मिडिल टर्म है 4x और x हमारा वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 4। कोफिशिएंट क्या हो गया 4। हमें क्या करना है, अप्लाई करते हैं। ओके जी, थर्ड टर्म क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जिसको मैं ऐड करूंगा तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। चलो जी अप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट है 4/2 का होल स्क्वायर। पहले तो ये देखो फ्रैक्शन कैंसिल हो सकता है, 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 का स्क्वायर बच गया। 2 का स्क्वायर का आंसर लिखें या 2 स्क्वायर लिखें, वन एंड द सेम थिंग। इसका मतलब क्या है, 4 इज एक्चुअली द थर्ड टर्म। हमारी जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 4 है। यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं 4 को प्लस कर दूंगा तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। सर फिर 1 का क्या होगा, चलो जी वो भी देखते हैं। लुक हियर, थर्ड टर्म 4/2 होल स्क्वायर, जो कि अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर आ गया 4। ओके, नाउ अब क्या करना है, मुझे
इस एक्सप्रेशन में 4 को प्लस करना है। अच्छा ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड टर्म की जगह पे ही लिखनी चाहिए। सो लुक हियर प्लीज, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 पहले मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि सर थर्ड टर्म हमारी 4 आई है, तो सर 1 का क्या करें? 1 बाद में लिख दो। यहां तक ओके? अच्छा, बिकॉज वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, और जैसा कि मैं क्लास में बताता था मैथमेटिक्स किसी के रूल्स के ऊपर नहीं चलती, तो मुझे खुद बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो सर यहाँ पे बैलेंसिंग क्या करूँ? ओके लुक हियर प्लीज, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ऑलरेडी था। मैंने अपनी मर्जी से इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज ऐड की है? प्लस 4 ऐड किया है। ये प्लस 4 क्यों ऐड किया? क्योंकि ये स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलो जी सही है, तो अच्छी बात हो गई, प्लस 4 तो करना चाहिए। लेकिन प्लस 4 किया है, अब मुझे इसको बैलेंस भी करना है। प्लस 4 को बैलेंस करने के लिए मुझे सेम एक्सप्रेशन के अंदर एक -4 भी करना पड़ेगा। कीप दिस इन योर माइंड। अगर मुझे इसको ऑथेंटिक बनाना है, टू द ऑन द रूल्स बनाना है, विद ऑल द प्रोटोकॉल्स बनाना है, तो जो मैंने खुद ऐड किया है उसी को मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन -4 ऑन द राइट मोस्ट कॉर्नर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब इसको बंद करना है। कैसे बंद किया था अपन ने? पहले का स्क्वायर रूट, बीच वाले का साइन, और आखिरी वाले का भी स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन गया? इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के। ये मैं आगे आपको अभी वेरीफाई करके बताऊंगा। ओके सर, व्हाट अबाउट दिस? या ये दोनों सेम है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -3। हमने इसको इस फॉर्मेट के अंदर देखो कंप्लीट कर लिया। लेट्स कंपेयर इट। वो कहता है x प्लस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू। तो x की जगह x है, यस सर x की जगह x है। p की जगह क्या है? सर p की जगह 2 है। दोनों की साइन सेम है, इसलिए हमने p की जगह डायरेक्टली 2 बोल दिया। ओके अच्छा सर q की जगह क्या है? यार q और 3, सर q की जगह वैसे तो 3 नजर आ रहा है, लेकिन साइन डिफरेंस है, तो हम क्या कहेंगे? p की वैल्यू तो 2 है, लेकिन q की वैल्यू क्या है? -3। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ओके मूविंग फॉरवर्ड। अब ये जो बेटा ब्लैक बैकग्राउंड में है ना, ये सब वही है जो पीछे अभी मैंने किया। लुक हियर, मैं फिर भी इसको एक दफा रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, ब्लैक वाला यानी ब्लू रिटन, ब्लू फॉन्ट जिसका है ना, मैं वो पढ़ रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। नाउ वी नो दैट द थर्ड टर्म इज 4। हमें पता है कि थर्ड टर्म क्या है? 4 है। हाउ कैन वी एड एनीथिंग विदाउट बैलेंसिंग द एक्सप्रेशन? ऑब्वियसली मैंने वही बोला ना, अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मुझे बैलेंस करने के लिए उसी चीज को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो फॉर बैलेंसिंग द एक्सप्रेशन वी मस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4। ठीक है जी, हमने क्या किया जी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 में +4 और -4 कर दिया, लाइक दिस, +4 और -4 कर दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने? मूविंग द थर्ड टर्म टू इट्स प्लेस। थर्ड टर्म अपनी जगह पे लेके आ जाओ। तो हमारा जो थर्ड टर्म है वो +4 है, तो +4 को मैं थर्ड टर्म के ऊपर लेके आ गया। ठीक है, 1 2 3 ये 3 टर्म्स कंप्लीट हो गई। इस साइड पे क्या बच गया? +1 एंड -4। फिर मुझे पता है मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ। क्या आएगा आंसर? -3। बाकी स्टार्टिंग की टर्म्स ऐसी की ऐसी। स्टार्टिंग की 3 टर्म्स, अब लुक हियर, the set of the starting 3 terms is a complete square। तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। जैसे ही हमने इसको कंप्लीट कर दिया, हमने इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देने का है। हमने इसको कंप्लीट करके बंद कर दिया, एंड दिस इज इन द शेप ऑफ x प्लस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू के अंदर। देखिए, मैंने आपको बोला था मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या होता है। अब देखो इधर, व्हाट इज दिस? सर द फॉर्मूला, हाँ क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab के।
होता है ना? ठीक है जी। क्या क्या हमने, सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। चलो जी, अब मुझे इसको इनक्लोज करना है, ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। तो पहले का स्क्वायर रूट ए, आखिरी वाले का स्क्वायर रूट बी, मिडिल वाले की साइन प्लस, तो हमने क्या बना दिया इसको, ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखो यही चीज बन गई ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं इसकी बदले ये लिख सकता हूँ, वाइस वर्सा उसके बदले ये लिख सकता हूँ। ठीक हो गई बात। सिमिलरली मुझे इसको बंद करना है। इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर वही चीज, होल स्क्वायर में पहले का स्क्वायर रूट, बीच वाले की साइन और आखिरी का भी स्क्वायर रूट, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा लाइक दिस। बन गया। उससे क्या हुआ, अब देखो इधर, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को हमने बंद कर दिया x प्लस 2 होल स्क्वायर में, ये सॉल्व किया तो हमारे पास बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 में। बन गया ना? देन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस p होल स्क्वायर प्लस q, जो उसने